A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi, and today I would be starting with part 2 for Unit 1 of BPCC 103, that is Personality and Individual Differences. So, this particular session would be part 2. For part 1 now, please refer to the playlist of BPCC 102, right? Sorry, 103. So you need to refer to that for part 1. And without wasting our time, let's get started with the this particular session. And let me change to the next slide. Okay, so you would be provided very interactive and helpful sessions here. And I hope if you find it helpful, you will subscribe, like, and share. And for today, let's get started with the content. So very important thing to know is the content for every session so that you get a brief idea for what we would be like studying today. So today we would be entertaining the very first thing and the complete thing like personality, then personality related terms that you should be aware of. Then we had certain definitions like by Gordon Elport and Walter Mischel, and then we have the thing that like personality traits versus what is like personality states. तो personality traits और personality states के बीच में difference और उनका significance क्या होता है. Then we would be studying about personality as a interplay of genes and environment. मतलब कि personality का basically how personality is an output of genes like the biological side and how it is the part of environment too. Then comes the last topic for today's session, that would be aspects of personality. So this is what we would be covering today, and I hope you would be like staying tuned throughout the session for best conceptual clarity. And let's get started. So the very first topic that comes is personality. So पर्सनालिटी को अगर हम ध्यान में रख के बात करें, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, सो लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर and let's set it to be white. Okay, this is again. Okay, so personality जो शब्द है इसका जो सी गाइस, वन थिंग आई नीड टू टेल यू ऑल दैट जो सेशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट्स, देन आपके बेसिक डेफिनेशंस जो कि आपकी इग्नू के हैंडबुक से अलग है, जो कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिड पॉइंट है. देन आपके पास जो है फ्लो चार्ट्स हो गए, डेफिनेशंस हो गई, आपके पास कहीं ना कहीं एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा इन सारी चीजों का. और आपके बहुत सारे जो मेजरली पॉइंट्स है वो हैंडबुक से है, BPCC 10 लाइक इट इज 3 या तो 103 के पॉइंट्स है. मेरे खुद के जो डेफिनेशन है that I have provided you with pictures for best explanation. I have provided you with flow charts. So अगर आपके पास कोई और source नहीं है तो you can completely rely on my content, on my slides. You can make the notes, you can note down them in your notebook, you can learn, you can revise. So content में कोई कमी नहीं है, आपको complete coverage मिलेगी sessions में. So you just need to focus on the session and explanation. So let's get started. तो आज का सेशन जो है पर्सनालिटी से रिलेटेड है, राइट. सो पर्सनालिटी जो शब्द है, जो एक वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लाइक ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कहाँ से इसका शुरुआत होती है. तो जो शब्द पर्सनालिटी है उसका ओरिजिन लेटिन ओरिजिन है, लेटिन भाषा से इसका वर्ड निकाला गया है, दैट इज द वर्ड पर्सोना. लाइक यू कैन सी यहाँ तक का वर्ड जो है ये पर्सोना. सो पर्सोना का जो मतलब होता है लेटिन लैंग्वेज में, तो वो मतलब होता है इट रेफर्स टू अ मास्क, एक जो मखोटा होता है, जो मास्क होता है, दैट वाज बेसिकली यूज्ड बाय एक्टर्स ऑफ रोमन थिएटर्स फॉर चेंजिंग देयर फेशियल मेकअप. मतलब कि जो मास्क हुआ करते हैं, जो फेशियल मेकअप के लिए बेसिकली शक्ल के एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए जो मास्क पहने जाते थे रोमन थिएटर्स के अंदर बाय द एक्टर्स, तो उस पर्टिकुलर मास्क को कहते थे पर्सोना. तो लेटिन जो भाषा से पर्सोना से ही पर्सनालिटी शब्द का हमें ओरिजिन देखने को मिलता है. तो ये जो शब्द है पर्सोना, इसका जो मतलब है मास्क, जो एक मुखौटा पहनते हैं थिएटर के लोग
जिससे कि उनके फेशियल मेकअप का बेसिकली जो चेंज हो जाए कंप्लीटली, आप एक मास्क बदलेंगे और आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। अभी तक आप हैप्पी वाला मास्क पहन के बैठे थे, अब आपने एकदम से सैड वाला लगा दिया या गुस्से वाला लगा दिया, ठीक है। तो मास्क चेंज करते ही आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आपका फेशियल मेकअप चेंज हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन के ले पर्सन, कोई भी एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जो साइकोलॉजी को नहीं जानता, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, लाइक पर्सनालिटी के लिए क्या डेफिनेशन होती है एक कॉमन पर्सन के लिए। ले पर्सन मतलब कॉमन पर्सन के लिए पर्सनालिटी से क्या तात्पर्य होता है। तो पर्सनालिटी एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या होता है, फिजिकल और आउटर अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि बाहरी रूप से आप कैसे लग रहे हो या आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आप कैसे दिखते हो। लोग जनरली पर्सनालिटी का मतलब ये समझ लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे साइकोलॉजी के अंदर, ये साइकोलॉजी का सिंबल है, सो साइकोलॉजी के अंदर पर्सनालिटी का एक नया रूप है, लाइक इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पर्सन एक्चुअली थिंक, राइट। नॉर्मल इंसान जो कॉमन पर्सन से अलग होती है पर्सनालिटी की रियल डेफिनेशन। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है रियल में जो आप यूज करेंगे, आपको पहले दिखाना है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फिर आप एक पॉइंट दिखा सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन पर्सनालिटी को कैसे देखता है, फिर आपको दिखानी है साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। ओके, ये आपकी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है जो आपको मार्क्स फेच करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी है, फिर आप ये दो डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट। सो पहला, दैट इट रेफर्स टू characteristic ways of responding to individuals and situation। दूसरी बात, आप प्लीज पार्ट 1 जरूर देख लेना इस पर्टिकुलर लाइक कोर्स का जो मैंने डाला हुआ है यूनिट 1 के लिए, प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्योंकि उसके टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप पहले पार्ट 1 को क्लियर करके और फिर आप इधर आए, ठीक है। सो पर्सनालिटी रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं, लाइक आप कैसे रिस्पॉन्ड आउट करते हैं, आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं, आपका जो एक तरीके से जनरल रिस्पॉन्स है। नॉर्मली आप हर एक सिचुएशन में एक तरीके से आपका एक पैटर्न बन जाता है, आपका एक पैटर्न बन जाता है बिहेव करने का। तो वो जो पैटर्न है जो आपका अब एक तरीके से आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई है बिहेव करने की, तो वो जो पैटर्न है आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं उसको पर्सनालिटी कहा जाता है। It refers to unique and relatively stable qualities that characterizes an individual's behavior across different situations over a period of time। So ये पर्सनालिटी ना, पहली बात तो हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है। पर्सनालिटी लाइक हम हर एक इंडिविजुअल जो है अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। और हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होती है वो भी यूनिक होती है। यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट होना या सबकी अपनी अलग अलग होना, है ना। वेरिड होना, वेरिड मतलब कि सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग, और अपने आप में एक खूबी, लाइक एक अच्छी या एक अपने आप में सबकी अलग अलग होती है, यूनिक होती है, ठीक है, खास होती है, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में खास होता है। हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है कि वो कैसे बिहेव करता है सिचुएशन के अंदर, वो भी यूनिक होता है, सबका अपना अलग होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, पर्सनालिटी को हम कहते हैं यूनिक एंड रिलेटिवली। रिलेटिवली मतलब कि अगर हम कंपेयर करें बाकी चीजों से, अधिकतर टाइम पे स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसी क्वालिटीज रहना, दैट कैरेक्टराइजेस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। वो क्वालिटीज आपके अंदर रहती हैं जो आपके बेसिकली जो यूनिक होती है, आपको दूसरों से अलग बनाती है और नॉर्मल में हर एक सिचुएशन में एक जैसी रहती है।
ठीक है, आप स्टेबल रहते हो, आपका जो बिहेवियर है वो स्टेबल रहता है, वो क्वालिटी स्टेबल है। ये नहीं है कि आज अलग है कल अलग हो जाएंगी, फिर लाइक 2 दिन बाद फिर अलग, महीने बाद फिर अलग, नहीं, वो स्टेबल रहती है नॉर्मली। वही आपकी जो है क्वालिटीज आपके अंदर इनबिल्ट रहती है, दैट कैरेक्टराइजेस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक कि टाइम भी आपका सेम नहीं है और सिचुएशन भी सेम नहीं है, पर आपका बिहेवियर जो है हर एक सिचुएशन में नॉर्मल एक पैटर्न पे चलता है, जो अपने आप में यूनिक है, अलग है दूसरों से, और वो स्टेबल भी है। लाइक सिचुएशन बदल जाएंगी, टाइम बदलता रहेगा, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है आपकी क्वालिटीज में, कि आप कैसे बिहेव करेंगे वो चेंज नहीं होगा। तो वो वाली जो क्वालिटीज जो हमेशा स्टेबल रहती है थ्रू आउट द सिचुएशंस, उनको हम पर्सनालिटी की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। तो दीज वर द लाइक, जो आप स्टार्ट करेंगे आपके पास ये 4 डेफिनेशन है जो आपको अपने आंसर राइटिंग में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लाइक पहले तो इंट्रोडक्टरी के लाइक जैसे सेकंड, ओके, सो एक तो ये कि लेटिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर नॉर्मल पर्सन, एक ले पर्सन के लिए पर्सनालिटी क्या होती है, फिर साइकोलॉजिकल सेंस में पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा सारी डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्टरी चीज है। एंड नाउ लेट्स मूव टू सर्टेन मोर पॉइंट्स। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर बहुत ही कम पॉइंट्स थे, तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करे हुए हैं, जिससे आपका जो कंटेंट होगा आंसर लिखने के लिए वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं जो स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ एक्स्ट्रा है, ये आपकी बुक में इतना नहीं है, राइट। सो आपको ये पॉइंट्स बनाने हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अपने लिए मतलब चाहिए तो आप यू कैन एक्चुअली नीड टू मेक द नोट्स एंड लाइक यू नीड टू रिवाइज एंड यू नीड टू सी द लेक्चर थ्रू आउट। सो अब बात आती है कि जो पर्सनालिटी होती है, ये पर्सनालिटी से, जस्ट लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेक इट, मेक इट टू ब्लैक। तो जो पर्सनालिटी है उसी के ये पॉइंट्स हैं, फर्दर पॉइंट्स हैं। पिछली स्लाइड पे हमने 2 डेफिनेशंस देखी थी साइकोलॉजिकल सेंस में, ले पर्सन के लिए क्या होती है और उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये देखा था। अब हम इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं कि पर्सनालिटी इज स्टेबल। स्टेबल मैंने बताया जो अधिकतर हर एक सिचुएशन में एक जैसी रहती है। एंड्योरिंग होती है, उसका मतलब भी वही रहता है, एक जैसी रहता है, मतलब लॉन्ग लास्टिक होती है, वही आपकी लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी, आपकी वो क्वालिटीज, आपकी वो खूबियां बिहेवियर शो करने की। ब्रॉड होती है, ब्रॉड मतलब आपकी पर्सनालिटी ब्रॉड होती है, लाइक एनहेंस्ड होती है, होलिस्टिक होती है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं रहती, अलग अलग डायमेंशन में बहुत सारी चीजों को बेसिकली अपने अंदर समा के रखती है। सो पर्सनालिटी इज स्टेबल, एंड्योरिंग, ब्रॉड ओवर टाइम एज अ रिजल्ट। टाइम के साथ साथ सिचुएशन में जैसे जैसे आप फेस करोगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही स्टेबल होती जाएगी, उतनी ही लॉन्ग लास्टिक मतलब कि एंड्योरिंग होती जाएगी, और उतनी ही ब्रॉड होती जाएगी। उसका जो कवरेज होगा, स्टडी एरिया होगा, वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली पर्सनालिटी के अंदर आपको जो है नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बेसिकली वो आपकी खूबियां होती हैं, वो आपकी क्षमता होती है, आपकी पोटेंशियल होती है, जो कि आपके माइंड से लाइक कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं होती है। मतलब कि आपका जो है इसके अंदर ज्यादा ब्रेन नहीं लगता, लेकिन वो आपकी बेसिकली जैसे कि नॉन इंटेलेक्चुअल मतलब कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होती, इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होती। पर्सनालिटी के अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं, वो आपकी एबिलिटीज या आपके पोटेंशियल आ जाता है, जो कि लाइक इंटेलिजेंस पे निर्भर नहीं करता इन जनरल, ठीक है। और इसके अंदर कुछ खूबियां ऐसी हैं जो कि नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, पर हम उनको भी कुछ चीजों को हटा देते हैं पर्सनालिटी से, क्योंकि ये कुछ जो नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, ये ना, ये एक टाइम के बाद चेंज होती रहती है, ये उतनी स्टेबल नहीं होती है। और हमें पता है पर्सनालिटी स्टेबल होती है, एंड्योरिंग होती है, ब्रॉड होती है। पर कुछ नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जैसे कि एटीट्यूड हो गया, आपकी हैबिट हो गई, हैबिट जो है हर लाइक 21 दिनों में आप अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली चीजें जो है उनको हम पर्सनालिटी के टाइटल के अंदर नहीं रखते. नाउ लेट मी जस्ट शेयर वन मोर लाइक white board to you and show you how it happens. Like personality हमें पता है, पर्सनालिटी के अंदर वो चीज आती है जो स्टेबल होती है. ठीक है, तो पर्सनालिटी के अंदर नॉन इंटेलेक्चुअल, लेट मी फुल स्क्रीन इट, सो नॉन इंटेलेक्ट पर्सनालिटी के अंदर नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आती हैं. ये वो आपकी क्षमता होती है, एबिलिटीज होती हैं जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होती, इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होती. मतलब कि जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड एबिलिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. लेकिन पर्सनालिटी के अंदर जो होता है वो होता है नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. मतलब कि वो एबिलिटीज नहीं होंगी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती हैं. इंटेलिजेंस को हटा देंगे, उनके अलावा यहाँ पे एबिलिटीज आ जाएंगी. लेकिन कुछ एबिलिटीज जो अपने आप में नॉन इंटेलेक्चुअल होती हैं पर स्टेबल नहीं होती हैं, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल, उनको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इनको भी हम यहाँ से हटा देंगे. एग्जाम्पल क्या होगा? हैबिट्स, आपका एटीट्यूड. ये आपकी पर्सनालिटी में नहीं आता क्योंकि ये चेंज होता रहता है, आप इनको चेंज कर सकते हो. क्योंकि पर्सनालिटी में वो चीजें आती हैं जो एंड्योरिंग होती हैं, मतलब कि ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहती हैं, एक जैसी रहती हैं. और ये चीजें जो हैबिट हो गई, एटीट्यूड हो गया, एटीट्यूड को भी हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आपका इंटेलिजेंस जैसी चीजें जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, ये सब कुछ हम पर्सनालिटी से दूर रखते हैं. ठीक है, तो पर्सनालिटी के अंदर आपकी स्टेबल चीजें आ जाएंगी, स्टेबल एबिलिटीज, और नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आ जाएंगी. ठीक है, इसके अलावा आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को हटा देंगे जो पर्सनालिटी में नहीं आ सकते, और कुछ नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो कि अनस्टेबल होती हैं उनको भी हम हटा देंगे पर्सनालिटी से. इस पॉइंट का मतलब ये है. नाउ लेट मी शेयर यू द स्क्रीन लाइक द स्लाइड्स बैक. तो अब आपको समझ में आ जाएगा आई गेस बिल्कुल क्लियरली कि अपने लेट मी चेंज द कलर, कि यहाँ पे जो है it consists of non-intellectual abilities in general but excludes such as attitude, habits. ये कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अपने आप से हटा देता है. सिंस दीज आर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, जो स्पेसिफिक है, जो हर बारी स्पेसिफिक मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एटीट्यूड जो है एक तरीके का होता है, ये स्टेबल नहीं होता. हर जगह पे सेम एटीट्यूड आप शो नहीं करते. ओके, हर जगह पे आप सेम एटीट्यूड होल्ड नहीं करते. आपकी कुछ हैबिट्स जो है हर सिचुएशन में एक जैसी नहीं रहती. तो इसलिए हम एटीट्यूड, हैबिट्स और भी चीजों को जो नॉन इंटेलेक्चुअल है पर हम इन्हें हटा देते हैं पर्सनालिटी से. ठीक है, इट पर्सनालिटी डज नॉट इंक्लूड मेंटल एबिलिटीज. मेंटल एबिलिटीज में क्या आ जाएगा? डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें जिसके अंदर आपका दिमाग लगता है, लाइक रीजनिंग आ जाएगी. ये सब कुछ हम नहीं इंक्लूड करते पर्सनालिटी के अंदर. इट डज नॉट इंक्लूड मेंटल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज विच आर नॉट स्टेबल सच एज इंटेलिजेंस. राइट, तो ये हो गया अपना कि क्या चीजें ये इंक्लूड करता है और क्या चीजें ये इंक्लूड नहीं करता अपने आप के अंदर. और एक इसकी लाइक पर्सनालिटी के फीचर हो गया कि पर्सनालिटी अपने आप में स्टेबल है, एंड्योरिंग है और ब्रॉड है. ठीक है, और ये टाइम के साथ साथ और भी अच्छी हो जाती है. राइट, क्योंकि हम अपनी चीजों को समझने लग जाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, हम उनको फिर फिक्स करने लग जाते हैं हर सिचुएशन के अंदर. नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. सो
दिस वाज ऑल. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ लाइक पर्सनालिटी सबकी अलग होती है, सबका माइंड लेवल अलग होता है. एंड अब हम करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक पर्सनालिटी की अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपकी बुक से नहीं है, मतलब उनके मतलब बुक के अंदर इनके जैसे पॉइंट्स हैं, पर वो कैरेक्टराइज नहीं कर रहे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक एक अलग ब्रॉड एक अलग सेक्शन नहीं है बुक में, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया है यूजिंग एनसीईआरटी. इस पर्टिकुलर स्लाइड का सोर्स एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ऑफ लाइक क्लास 12th की एनसीईआरटी है. पर्सनालिटी से रिलेटेड मैंने इसके अंदर वहां से कॉन्सेप्ट डाल दिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी? तो पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज पर्सनालिटी है कि नहीं? तो पर्सनालिटी के अंदर आपकी फिजिकल कंपोनेंट भी आता है. लाइक आपका आउटर अपीयरेंस मैटर करता है, पर बिल्कुल सब कुछ आउटर अपीयरेंस पे नहीं टिका रहता. ठीक है, तो आपका फिजिकल के अंदर आ जाएगा आपकी हैंड मूवमेंट कैसे है, आप कैसे खड़े होते हो, आप बैठते कैसे हो. ठीक है, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आपका फिजिकल में आ जाता है. फिर आपके साइकोलॉजिकल कंपोनेंट में आपके जो भी आपकी नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो आ जाती हैं. तो पर्सनालिटी के अंदर फिजिकल कंपोनेंट भी होता है और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है. आप इसको कुछ इस तरह से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं. ये दो डायग्राम हम बना देंगे. तो इसके अंदर आप क्या डालेंगे, फिजिकल, और इसके अंदर आप क्या डालेंगे, साइकोलॉजिकल. और एक पॉइंट पे ये दोनों चीजें अपने आप में ओवरलैप होती है, लाइक एक दूसरे के अंदर मिल जाती है. तो इस पॉइंट पे आप दिखा देंगे कि ये दोनों चीजें जो है पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, फिर आता है इट इज लाइक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक. बेसिकली पर्सनालिटी को हम अपने बिहेवियर के रूप में बाहर के बेसिकली लोग हमें ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट? तो हमारी पर्सनालिटी दिखेगी कैसे, हमारे बिहेवियर से, क्योंकि बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो पर्सनालिटी को जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर. और हमें पता है बिहेवियर सबका यूनिक होता है, कोई भी एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करता, एक जैसे रिस्पॉन्सेज नहीं देता. तो बिहेवियर अपने आप में यूनिक होता है और हम अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर. अब जो मुख्य फीचर्स होती हैं, जो ब्रॉड ब्रॉड फीचर्स होती हैं पर्सनालिटी की, वो स्टेबल रहती हैं. स्टेबल रहती है मतलब एक जैसी रहती हैं हर सिचुएशन में या हर प्रॉब्लम में या हर टास्क के अंदर. तो जो मेन फीचर्स होती है पर्सनालिटी की, दे आर स्टेबल इन नेचर. देन कम्स डायनेमिक, दैट इज पर्सनालिटी अपने आप में डायनेमिक है, लाइक बहुत ज्यादा होलिस्टिक है. आप नए नए वर्ड्स यूज करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में तो और भी ज्यादा आपके आंसर को एनहेंस करेगा. कि पर्सनालिटी जो है डायनेमिक होती है. सम फीचर्स में चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड. डायनेमिक होना मतलब कि एक टाइम पे आपकी पर्सनालिटी की कुछ फीचर्स, जो मेन फीचर्स, तो देखो पर्सनालिटी के अंदर दो तरीके की फीचर्स आ जाएंगी. एक तो मेन हो गई और एक सब सब फीचर्स हो गई या स्मॉल फीचर्स हो गई, या जो मेन फीचर्स से अलग होती हैं. तो मेन फीचर्स जो है पर्सनालिटी की जो खूबियां हैं वो तो स्टेबल रहेंगी, वो एक जैसी रहेंगी थ्रू आउट द सिचुएशन. लेकिन जो छोटी छोटी फीचर्स होती हैं वो ना एक तरीके से इंटरनल में मतलब कि अंदरूनी रूप से, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से चेंज हो जाती है. और उस वजह से हमारा बिहेवियर भी थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाता है. क्योंकि पर्सनालिटी की जो छोटी छोटी फीचर्स होती हैं उनको डिमांड के हिसाब से, लाइक सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से, सिचुएशनल डिमांड के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है या मोल्ड अप करना पड़ता है, और फिर हम एक बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमारी पर्सनालिटी जो है स्टेबल भी होती है और डायनेमिक भी होती है. दूसरी बात, हमारी पर्सनालिटी जो है अडेप्टिव होती है. अडेप्टिव टू नेचर मतलब कि अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेती है. अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्सनालिटी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, लाइक अपने आप को चेंज कर लेती है और फिर उस माहौल में अपने आप को इंक्लूड कर देती है. तो ये सारी फीचर्स थी पर्सनालिटी की. आई होप ये समझ में आ गई होंगी आपको. नाउ लेट्स मूव टू लाइक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. तो उसके अंदर आ जाएगा आपका, लेट मी चेंज इट.
तो उसके अंदर आ जाएगा पर्सनालिटी से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको आगे वाली पूरी बुक में, पूरे कोर्स में, पूरी यूनिट में काम आने वाली है। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये भी आपकी बुक से नहीं है, ये एक्स्ट्राज लाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर बुक में क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, तो आई हैव एडेड दीज डेफिनेशन, सो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड देम, एंड आपके पास ये लिखी होनी चाहिए, जिससे कि आपका कंटेंट और एनरिच्ड बन जाएगा, राइट। सो पहला जो टर्म आपको समझनी है जो पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है, वो है टेम्परामेंट की। कि टेम्परामेंट क्या होता है? ये जो वर्ड्स है ना, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, पर इनका जो रियल मतलब है वो हम रियल लाइफ में कहीं ना कहीं खो देते हैं, क्योंकि लोग अपनी ही टर्म, मतलब साइकोलॉजिकल टर्म्स है, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड टर्म्स है, साइकोलॉजिकल है, पर लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, जो कॉमन पर्सन होगा या जो ले पर्सन होगा वो इनकी अपने आप से, मतलब अपने आप से सोच के समझ के बना लेते हैं डेफिनेशन, और अपना एक परसेप्शन अपने दिमाग में चीजें बिठा लेते हैं। पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स की, इन साइकोलॉजिकल टर्म्स की जो रियल मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कि बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टिंग, कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं एक सिचुएशन को लेके, एक प्रॉब्लम को लेके, जो भी बात के अंदर हमें रिएक्शन देना पड़ता है, तो हमारा वहां पे एक तरीके से हमारी खूबियां, क्या क्वालिटीज आ जाती हैं जो उस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। बेसिकली टेम्परामेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल सेंस में आ जाता है, जो हमारे जीन्स के, बेसिकली एक तरीके से हमारा ये जो तरीका है रिएक्ट करने का, ये जो इसके ब्रॉड फीचर्स रहेंगी इस रिएक्शन की, ये हमारे जीन्स की वजह से होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल सेंस से होती है। मतलब हमारे हमें ये चीजें, टेम्परामेंट जो है हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, या फिर हमारे फैमिली से मिलता है, उनके ब्लड ग्रुप से, उनके जीन से मिलता है। मतलब आपने देखा होगा, कहते होंगे कि इसके तो पापा भी इतना गुस्सा करते हैं इसलिए ये ऐसी करती है, राइट। सो मतलब कि आपका आपका जो एक बेसिक रिएक्शन का जो तरीका है, आप किस सेंस में रिएक्ट करते हो, आप बहुत ही शांत इंसान हो, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो और आप उस तरीके से रिएक्ट कर देते हो, आप एकदम से गुस्सा हो जाते हो, तो ये सारी चीजें आपकी टेम्परामेंट की वजह से हो जाती है। और ये टेम्परामेंट बायोलॉजिकल होती है, मतलब आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से ये टेम्परामेंट मिलता है, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके जीन्स के अंदर ये टेम्परामेंट होता है। तो इसको आप उतना लाइक चेंज नहीं कर सकते, एनवायरमेंट का रोल तो होता है, पर टेम्परामेंट जो है ज्यादा अपने बायोलॉजिकल साइड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है अपनी ट्रेड्स। तो ट्रेड्स क्या होते हैं? सी, ट्रेड्स का मतलब, जो ट्रेड्स होते हैं आर दी स्टेबल, लेट मी चेंज द कलर, मेक इट येलो, ओके। सो ट्रेड्स आर लाइक द स्टेबल, स्टेबल हमें पता है जो हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है, परसिस्टेंट मतलब भी वही होता है, एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। तो ट्रेड्स का मतलब होता है हमारा बिहेविंग का तरीका, बिहेव हम कैसे करते हैं, पर ये जो तरीका होता है, ट्रेट जो है नॉर्मली स्टेबल रहता है, लाइक हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है। ट्रेट्स आर स्टेबल, परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग बाय अ पर्सन। ठीक है, जो मुख्य रूप से आप एक तरीके से सिचुएशन, हर सिचुएशन में बिहेव करते हो, जो आपकी मेन स्टेबिलिटी रहती है वो ट्रेट की वजह से रहती है। फिर बात आती है डिस्पोजिशन की, कि डिस्पोजिशन क्या होता है, राइट। सो डिस्पोजिशन के लिए हम देखेंगे कि डिस्पोजिशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। हम, हमारी क्या टेंडेंसी हो जाती है, हमारी क्या आदत हो जाती है, लाइक हैबिचुअल हो जाते हैं, एक तरीके से एक पर्टिकुलर वे में हम रिस्पॉन्स बेसिकली अपना देते हैं, रिएक्ट करते हैं एक सिचुएशन के अंदर। बेसिकली हमारी क्या टेंडेंसी हो जाती है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे। उस पर्टिकुलर तरीके में ही हम अपने बेसिकली अपने आप को अपना रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, आई गेस इट मस्ट बी द लास्ट वन फॉर दिस लाइक पर्सनालिटी रिलेटेड टर्म्स। अब है हैबिट। हम सबको पता है हैबिट क्या होती है। हैबिट मतलब कि वो ओवर लर्नड मोड्स ऑफ बिहेविंग, वो बिहेवियर का तरीका, वो बिहेवियर अपना जो कि ओवर लर्न हो जाता है, मतलब हमारे अंदर ज्यादा ही अच्छी तरह हमारे अंदर
ट्रैप्ड अप हो जाते हैं, लाइक हम ज्यादा ही उस बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं, हम हमारा वो हैबिट बन जाती है, लाइक वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में बिल्कुल इतनी बुरी तरह समा जाता है दैट वो पर्टिकुलर बिहेवियर हमारा हैबिट बनने लग जाता है। तो हैबिट हम 21 डेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो हैबिट बेसिकली ओवर लर्नड मोड ऑफ बिहेविंग होता है। लाइक हैबिट में तो ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, हमें सबको पता है हैबिट्स क्या होती है। तो नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज वैल्यूज। वैल्यूज भी सबको पता होता है, जनरली हम टर्म यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो वैल्यूज मतलब कि वो गोल्स एंड आइडियल्स दैट आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एंड वर्थवाइल टू अचीव। वैल्यूज मतलब कि वो गोल्स, वो जो हमने गोल्स जो अपने एम तैयार करा है, एंड आइडियल्स, आइडियल मतलब जिस जो एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके ऊपर हम काम करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, दैट आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट एंड वर्थवाइल, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये गोल्स, ये आइडियल्स, और वर्दी होते हैं, लाइक वेरी मच वर्दी, लाइक दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अचीव। ये वो गोल्स और आइडियल्स होते हैं जो हमें अचीव करने, हमारे वो गोल्स होते हैं, इसलिए हम उसके लिए हम वैसा बिहेवियर शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा गोल है एक लाइक एक पर्टिकुलर, या आपका कोई गोल है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करना एज अ पर्सन, आप कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वो आपका गोल है, वो आपका आइडियल है, आपको वहां तक पहुंचना है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी, अपना दिमाग भी, अपना सारी चीजें ओवरऑल आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक तरीके से एक रूटीन फॉलो करोगे, राइट, आप एक बिहेवियर फॉलो करोगे, आप अपना एक तरीके से हैबिट तैयार कर लोगे। तो उन चीजों को कहते हैं हम वैल्यूज। बेसिकली हम वैल्यूज को फॉलो करते हैं अपने गोल को, अपने आइडियल को अचीव करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये गोल और ये आइडियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अचीव करना, और इसलिए हम उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। सो वैल्यूज ये होता है। देन लेट्स गो टू लाइक नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज, अब हम बात आ जाती है डेफिनेशंस की जो फिलोसफर, स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो पहले हम बात करेंगे गॉर्डन एल्पोर्ट ने जो डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी के लिए। तो जब भी हम कंटेंट लिखते हैं पर्सनालिटी के ऊपर, तो एक तो आप क्या लिखोगे, एक तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, ले पर्सन ने कैसे दिया, फिर आप देंगे दो साइकोलॉजिकल जो डेफिनेशन हमने देखी थी, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे कि आप उसका नेचर बताएंगे कि स्टेबल होता है, एंड्योरिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और अपना ये क्या कहते हैं, एक और पॉइंट था ब्रॉड होता है। फिर आप बताएंगे कि पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है इंटेलेक्चुअल एंड नॉन इंटेलेक्चुअल की टर्म्स में। फिर आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर आपको मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड जो आप यूज कर सकते हैं उनकी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो। फिर आप जो है मतलब ये वाली जो स्लाइड है जो मैंने इससे पिछली वाली पढ़ाई है, इसमें टर्म्स है, ये आपको मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उस टर्म को समझाने की आप वहीं पे यूज करेंगे। और फिर आपकी अब जो है डेफिनेशंस आ जाती है पर्सनालिटी से रिलेटेड जो कि स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट ने दी है, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम दैट एक्सप्लेन गॉर्डन एल्पोर्ट्स डेफिनेशन, या फिर आप इसको अपने पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बोल दिया जाए राइट अ ब्रीफ शॉर्ट आंसर ऑन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन एंड डिफाइन पर्सनालिटी, तो आप उसमें स्टार्टिंग की स्लाइड्स वगैरह सब कुछ डालेंगे, और ये भी चीजें ये कंटेंट भी डालेंगे जिसमें आप बताएंगे कि गॉर्डन एल्पोर्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट अपने साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनकी क्या डेफिनेशन थी पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो दिस इज द पर्सन, दिस इज लाइक पिक्चर है यहाँ पे गॉर्डन एल्पोर्ट की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद की डेफिनेशन क्या दी गई थी बाय गॉर्डन एल्पोर्ट। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर इफ यू आर लाइक हैविंग एनी प्रॉब्लम सो यू कैन एक्चुअली गो रिवाइंड द वीडियो एंड सी इट अगेन, जिससे कि आगे वाली कॉन्सेप्ट्स में आपको डिफिकल्टी ना आए। सो बेसिकली गॉर्डन एल्पोर्ट ने जो है अपनी पहली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक जो काम जो उनका टेक्स्ट बुक थी, एक बुक निकाली थी उन्होंने पर्सनालिटी साइकोलॉजी के ऊपर 1937 में, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी जो है वो होती है द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस द इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट। तो ये डेफिनेशन दी गई थी बाय गॉर्डन एल्पोर्ट
और बेसिकली उन्होंने ये बुक भी लिखी थी। उनका काम बहुत ही अच्छा माना गया था पर्सनालिटी को लेके। बेसिकली जब साइकोलॉजी उभर रही थी अपने टाइम पे, लाइक साइकोलॉजी अपना एज अ डिसिप्लिन तैयार हो रहा था, तो उसके अंदर पर्सनालिटी के बारे में कंटेंट देने का जो एक रोल निभाया गया था वो इन अर्ली साइकोलॉजिस्ट ने निभाया था। तो उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है गॉर्डन एल्पोर्ट। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी पर्सनालिटी की। तो उन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी जो है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक चीजों को ऑर्गेनाइज करना विद इन द इंडिविजुअल। उन चीजों को बेसिकली हम साइकोलॉजिकल सिस्टम्स को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिविजुअल के अंदर, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात आती है, लाइक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार होती है, उनका बिहेवियर शेप होता है, उनके थॉट्स बिल्डअप होते हैं। तो ये जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है साइकोलॉजिकल सिस्टम्स का लोगों के अंदर फॉर शेपिंग वंस कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट्स, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। तो ये डेफिनेशन दी गई थी बाय गॉर्डन एल्पोर्ट। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी, और अब आप इस डेफिनेशन को रीड आउट भी करेंगे तो भी आपको और ज्यादा अच्छी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ let me move to next slide and just a second. Okay, so अब गॉर्डन एल्पोर्ट ने डेफिनेशन तो दी, तो उन्होंने जो है कुछ मेन एस्पेक्ट्स दिए थे, लाइक कुछ 4 चीजें जो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में हाईलाइट करने की कोशिश करी है बाय गॉर्डन एल्पोर्ट, वो हम अब कुछ स्लाइड में देखने वाले हैं कि क्या 4 मुख्य चीजें उन्होंने फोकस हमसे कहा है कि इन चीजों पे हमें फोकस देना पड़ेगा जब हम पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ जो चीजें उन्होंने बताई हैं वो कुछ इस तरह है जो भी हमने डेफिनेशन में देखी है। So let me explain it to you right now. Let me change the color of the pen and I will change it to white. Okay. So पहला जो चीज उन्होंने जो पहली change it to green. So, पहली चीज तो उन्होंने बेसिकली हमें समझाने की कोशिश करी है वो है कि वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द भी आया था, तो उनके हिसाब से जब हम पर्सनालिटी की टर्म्स में बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से कह रहे हैं कि पर्सनालिटी इज होल, कि पर्सनालिटी अपने आप में कंप्लीट है। ये एक पर्सन की टोटलिटी से रिलेटेड है, लाइक कंप्लीटनेस होनी चाहिए लोगों की पर्सनालिटी के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कहीं ना कहीं स्पेसिफिक भी है और यूनिकनेस भी होती है जो एक इंसान के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर दूसरी चीज उन्होंने जो हाईलाइट करने की कोशिश करी है वो है डायनेमिक एस्पेक्ट जो है पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा था कि इट इज लाइक अडेप्टिव एंड सेंसिटिव। पर्सनालिटी जो होती है अडेप्टिव होती है और सेंसिटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट एंड एनवायरमेंट, कि किस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी पर्सनालिटी को कंसीडर करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पर्सनालिटी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और बैलेंस बना लेती है अपने सेल्फ के बीच में, मतलब पर्सन अपने आप के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में। जो उनसे एनवायरमेंट में एक पर्सन रह रहा है उसका जो खुद का सेल्फ है, तो ये सब कुछ बैलेंस बनाना जिससे कि एक बिहेवियर आप जो जनरल बिहेवियर अपना शो कर पाए, ये सब कुछ अपना पर्सनालिटी करती है। फिर आती है साइकोलॉजिकल सिस्टम, कि पर्सनालिटी के लिए हम साइकोलॉजिकल सिस्टम वाले टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनालिटी के नहीं, साइको फिजिकल सिस्टम। सो एक तो 2 चीजें इंटरैक्ट करके पर्सनालिटी को शेप करती है। द वेरी फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, मतलब एक इंडिविजुअल का जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है और जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो, और एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट जो है वो, ये दोनों मिलके जो है हमारी पर्सनालिटी को साइको फिजिकल सिस्टम की तरफ लेके चलते हैं। सो नाउ लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स एंड टेल यू कि फिगर कैसे बनाएंगे। तो एक ये ना वेन डायग्राम्स होते हैं, वेन डायग्राम ये लाइक मैथमेटिक्स में सिखाए जाते हैं कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, रीजनिंग का भी ये पार्ट है। तो वेन डायग्राम के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने मतलब खुद से डायग्राम्स बना रखे हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइड है और ये साइकोलॉजिकल और मेंटल साइड है एक इंसान की।
और ये दोनों हमें जो है पर्सनालिटी की तरफ लेके चलते हैं। तो ये वाला जो कॉमन एरिया है जहाँ पे बायोलॉजिकल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल और मेंटल साइड दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे, जहाँ पे इन चारों चीजों को हमें बेसिकली मिक्सचर मिल जाता है, इस पर्टिकुलर हिस्से को बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे साइको फिजिकल सिस्टम। अब बात आती है बिहेवियर और थॉट के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी को हम इस पर्टिकुलर बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर थॉट से लाइक इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें समझ में आता है। तो ये वो बिहेवियर और थॉट्स है जो कि कंसिस्टेंट है, जो एक जैसे चलते हैं, स्टेबल है, लाइक दीज आर द कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज ऑफ थॉट्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड बिहेवियर। तो ये अपने आप में कंसिस्टेंट है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है हमें समझाने की कोशिश करी है गॉर्डन एल्पोर्ट ने रिगार्डिंग पर्सनालिटी, राइट। और ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है क्योंकि इन्हीं लाइक गॉर्डन एल्पोर्ट के काम से जो उन्होंने अपना वर्क दिया है पर्सनालिटी साइकोलॉजी में, उसी से हम पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लाइक वॉल्टर मिशेल क्या देते हैं पर्सनालिटी की लाइक डेफिनेशन को। तो वॉल्टर मिशेल की ये इंडिविजुअल है और इनकी क्या डेफिनेशन रहेगी पर्सनालिटी को लेके, तो वो भी अब हम देखते हैं। नाउ लेट मी मूव टू लाइक नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट मी क्लिक हियर, ओके। तो जो अपने मिशेल साहब है, वॉल्टर मिशेल साहब है, इन्होंने क्या कहा है पर्सनालिटी को लेके। So he said that personality is like this. It holds personality के अंदर आपको distinctive मतलब अलग, दूसरों चीजों से अलग। So distinctive patterns of behavior देखने आपको मिलेगा, thought and emotion। Like personality के अंदर आप उन अलग बिहेवियर पैटर्न को समझेंगे, थॉट्स के बारे में बात करेंगे और इमोशंस के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मल से अलग है, डिस्टिंक्ट है, दे आर वेरिड। ओके, सो उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी कैरेक्टराइजेस लाइक इंडिविजुअल्स अडेप्टेशन टू सिचुएशन एंड डिमांड। तो ये कहते हैं कि पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की जो हैबिट है या फिर एक तरीके से उनकी जो एबिलिटीज है या एक तरीके से वो बिहेवियर पैटर्न है जो कि वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप में, एनग्रेन कर लेते हैं सिचुएशन और डिमांड के हिसाब से। तो पर्सनालिटी अगर मैं रीड आउट करूं उनका कंटेंट, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मिशेल, पर्सनालिटी इज द डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। Personality characterizes individuals' adaptation to situation and demands. So this was all about the work of Walter Mischel. इससे ज्यादा आपको नहीं देना है ध्यान इन चीजों पे, आपको इनकी डेफिनेशंस और मेन एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं कुछ चीजें अलग, ये वॉल्टर मिशेल या किसी और का काम नहीं है, ये पर्सनालिटी को समझाने के लिए चीजें हैं, फ्लो चार्ट्स हैं जो आप अपने में यूज कर सकते हैं। सो अब बात आती है कि पर्सनालिटी जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर आप प्लीज आप लाइक पिछले कंटेंट को जरूर देखना, पार्ट 1 को जरूर देखना, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जिन्होंने पढ़ा होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, लाइक BPCC 101 में मैंने पढ़ाया हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, और पार्ट 1 में भी मैंने इसका जिक्र किया था। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट होता है, सब अपने लाइक सबके बिहेवियर पैटर्न में, थॉट में, इमोशन में, थिंकिंग में, हम सारी चीजों में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पार्ट हमारा पर्सनालिटी भी है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है और हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की यूनिक पर्सनालिटी होती है, बिहेवियर पैटर्न होता है, थॉट प्रोसेस होता है, इमोशंस होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड लाइक अब हम वाले हैं, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक कवर अप है, एक फ्लो चार्ट है। सो पर्सनालिटी बेसिकली स्टडीज अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। हमारे क्या बेसिकली हमारे बिहेवियर के पीछे का जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम जो बिहेवियर शो करते हैं उसके पीछे के जो चीजें हैं, लाइक फैक्टर्स जो है जो एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको पढ़ती है पर्सनालिटी। Personality explains individual's characteristic pattern of thoughts, emotions and behavior। कि एक इंडिविजुअल का क्या वो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, क्या पैटर्न है लाइक टू बिहेवियर के टर्म्स में, थॉट्स के टर्म्स में, इमोशन के टर्म्स में। तो यही अब तक हमने पढ़ा है। फिर बात आती है कि पर्सनालिटी जो है साइकोलॉजिकल नेचर की होती है,
पर्सनालिटी जो है इंटेलेक्चुअल डोमेन से बाहर होती है, इसके अंदर आप नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं। पर्सनालिटी एंड्योरिंग होती है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंड इट इज पर्सनालिटी इज ब्रॉड सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अनगिनत चीजें मिलेंगी। और पर्सनालिटी जो है एक तरीके से आपका जनरलाइज्ड पैटर्न होता है। जनरलाइज्ड पैटर्न मतलब कि वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो आप हर सिचुएशन में शो करते हैं। फिर से बात वही स्टेबिलिटी पे आ जाती है, राइट। तो ये अब तक हमने लाइक एक ब्रीफ है, पूरे के सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड करके ये आपका फ्लो चार्ट है, आप इसको बना सकते हैं, आपके लिए रिवीजन में और लाइक आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड स्टेट्स। ओके, तो पर्सनालिटी ट्रेट एंड स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अभी हमने ट्रेट पढ़ा था पीछे साइको पर्सनालिटी से रिलेटेड टर्म्स के अंदर, तो उसी अब हम देखेंगे पर्सनालिटी ट्रेट और पर्सनालिटी स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज ओके। तो ये डिफरेंस मैंने बना दिया है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा एंड लेट्स लाइक स्टडी इट फॉर अ व्हाइल। So let me change the color also because I'm bored with that color. Now, so अब हम देखेंगे कि पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है और पर्सनालिटी स्टेट क्या होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं तो उससे हम ये भी समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल अप्रोच की। लाइक पर्सनालिटी को समझने के लिए ना हमारे पास दो अप्रोच है। एक तो सिचुएशनल अप्रोच है, ठीक है, स्पेशल मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, उतनी जगह नहीं है। तो पर्सनालिटी को रिलेटेड आपकी या तो एक सिचुएशन अप्रोच होती है या आपकी डिस्पोजिशनल अप्रोच होती है। डिस्पोजिशन भी मैंने आपको पीछे पर्सनालिटी रिलेटेड टर्म से पढ़ाया था और ट्रेट भी पढ़ाया था, राइट। सो पर्सनालिटी को लेके हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो डिस्पोजिशनल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस तैयार करना और हमें बताना कि कौन सी अप्रोच क्या चीजें देखती है पर्सनालिटी के अंदर, ये चीजों को हम बेसिकली ट्रेट और स्टेट की हेल्प से समझते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ट्रेट जो होता है, ठीक है, जैसे सेकेंड तो जो पर्सनालिटी ट्रेट होता है वो हमें डिस्पोजिशनल अप्रोच को यूज करता है। तो ट्रेट के अंदर हमारी जो टिपिकल बिहेवियर होता है, जो लाइक हमारे अंदर एनग्रेन्ड होता है, पहले से हमारे अंदर समाया होता है, तो लाइक हमारे डिस्पोजिशन का मतलब यही था। तो डिस्पोजिशनल अप्रोच और ट्रेट का मतलब क्या होता है कि वो बिहेवियर पैटर्न जो हमारे अंदर एनग्रेन्ड है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी समाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इंटरनल डिस्पोजिशन या फिर प्रेफरेंस टू एक्ट व्हाई वन इज डिफरेंट इन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू हिज और फीलिंग्स ऑफ बिहेवियर। लाइक इसके अंदर कहना चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे ट्रेट से रिलेटेड है। लाइक हमारी जो टिपिकल बिहेवियर पैटर्न होता है उससे रिलेटेड होती है, उसी की वजह से हमारा जो टिपिकल पैटर्न होता है बिहेव करने का, उसी की वजह से हमारी पर्सनालिटी जो है शेप होती है। ट्रेट हमें ये कहता है, लेकिन पर्सनालिटी स्टेट क्या कहती है? पर्सनालिटी स्टेट क्या कहती है? पर्सनालिटी स्टेट जो है सिचुएशनल अप्रोच पे काम करती है। और जैसे कि हमें पता है सिचुएशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसी सिचुएशन या जैसे टास्क के अंदर हम हैं वैसा हम बिहेव करते हैं और फिर हमारी पर्सनालिटी वैसी तैयार हो जाती है, ये हमें ये कहता है। तो स्टेट्स बेसिकली रिफ्लेक्ट्स हाउ वन एक्ट इन अ सिचुएशन, कि हम एक सिचुएशन के अंदर कैसे एक्ट करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को जो है डिटरमाइन करता है। इट बेसिकली इट इज द डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल इन डिफरेंट सिचुएशन, कि हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेवियर शो करते हैं, कैसे हम अलग अलग सिचुएशन में रिएक्शन देते हैं, तो उससे हमारी पर्सनालिटी शेप होती है। सो दिस इज द डिफरेंस लाइक बिटवीन डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल अप्रोच को लेकर कि हम पर्सनालिटी को कैसे पढ़ते हैं। या तो हम अपने टिपिकल बिहेवियर पैटर्न को कंसीडर करते हैं या फिर हम सिचुएशन को कंसीडर करते हैं अपनी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए। अब बात आती है पर्सनालिटी एज अ इंटरप्ले ऑफ, लाइक पर्सनालिटी जो है रिजल्ट है नेचर का और नर्चर का। दो अलग अलग वर्ड्स हैं ये और इनका अलग अलग सेंस भी है। लाइक लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि
वैसे तो आपको ये टर्म्स पता होंगी, पर यहाँ पे मैंने इसलिए नेचर और नर्चर यूज करा है वर्ड, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड पॉइंट मिल जाए जो कि नॉर्मली बच्चे यूज नहीं करते हैं। वो सिर्फ इग्नू का हैंड मटेरियल पढ़ के जाते हैं और उसको लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स में अब तक दिख गया होगा, इग्नू मटेरियल से थोड़ा ज्यादा लेवल पे है, आपको डायग्राम्स एक्सप्लेनेशन सब कुछ उसी हिसाब से मिल रहा है, जिससे कि आप अलग लिख के आओ, डिफरेंट लिख के आओ और ज्यादा सॉलिडिफाइड लिख के आओ, क्योंकि इन पॉइंट्स के बाद कुछ भी नहीं बचता है इस कंटेंट के अंदर। और उसकी वजह से आपके ऑब्वियस है, जब आपकी अप्रोच ही अलग हो जाएगी और ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच से आप अपने काम को करोगे पेपर के अंदर, तो आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से आपके इंक्रीज हो जाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी एग्जाम्स के अंदर, या आपके जो दिमाग के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट की लाइक स्टेबिलिटी रहेगी, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, वो भी नॉर्मल से अलग होगा। तो यही मेरा मोटिव है इस पर्टिकुलर चैनल को खोलने का, कि आई नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट आई कैन, क्योंकि नॉर्मल लोगों से आपको अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच से आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, सो लाइक दिस ओनली वी विल बी लाइक वर्किंग। एंड सो पर्सनैलिटी इज लाइक इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। इंटरप्ले मतलब कि एक दूसरे का यूज होता है, एक दूसरे, नेचर और नर्चर जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में, तब जाके हमारी पर्सनालिटी शेप होती है। तो नेचर का मतलब होता है बायोलॉजिकल साइड ऑफ पर्सनालिटी, मतलब कि आपके जीन्स से बात आती है। जब हम बात करते हैं नर्चर, नर्चर का मतलब होता है एनवायरमेंटल साइड ऑफ पर्सनालिटी, जिसके अंदर आपकी सोसाइटी आ जाएगा, आपका कल्चर आ जाएगा। तो जब हमारे जीन्स और हमारा एनवायरमेंट जो हमें मिल रहा है, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी शेप करती है। ये एक ब्रीफ था, अब हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि इस टॉपिक के पॉइंट्स क्या हैं। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। सो या, सो इट, पर्सनालिटी के बारे में बात चल रही है। So let me write it over here. Personality is the interplay. Interplay का मतलब आप समझ गए होंगे, इंटरैक्ट करना। जब इंटरैक्ट करते हैं, so personality is the interaction या फिर interplay of genetic and environmental factors. Genetic से आप क्या लिखेंगे? Nature, and environment से आप क्या लिखेंगे? Nurture. Nature and nurture. So personality is the interplay of genetic and environmental factors. तो अगर हम बायोलॉजिकल साइड को देखें, तो बायोलॉजिकल साइड के अंदर हम देखते हैं, बायोलॉजिकल बेसिस पे हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट जो है तैयार होती है। ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरोसाइकोलॉजी, ये सारी चीजों का जो है हम साइड देखते हैं बायोलॉजिकल हिस्से के अंदर। तो पर्सनालिटी ट्रेट हमारी जो है वो बायोलॉजिकल जीन्स की वजह से तैयार होती है। हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, राइट, हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी हमारे बायोलॉजिकल बेसिस की वजह से होता है, और वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। जो न्यूरोकेमिस्ट्री है, न्यूरॉन्स और जो हमारे केमिकल्स, हॉर्मोन्स वगैरह सबका जो फंक्शनिंग है, वो भी हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। न्यूरोसाइकोलॉजी जो होती है, वो होती है कि जिसके अंदर हम ब्रेन के और साइकोलॉजिकल और बिहेवियर के बीच के जो अंदर का रिलेशन है वो समझते हैं। तो ये भी हमारे बायोलॉजिकल बेसिस से रिलेटेड है। फिर एक पर्सन रहे हैं यामागाता एट अल, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एविडेंसेस प्रोवाइड कराए थे कि जो जेनेटिक बेसिस होता है, लाइक जो नेचर होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल साइड होती है, कि वो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग कल्चर के अंदर। तो यामागाता एट अल ने एविडेंसेस प्रोवाइड करे थे कि जेनेटिक बेसिस क्या है पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी ट्रेट का, और कैसे ये अलग अलग कल्चर में पाए जाते हैं। तो ये था बायोलॉजिकल बेसिस पे। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बेसिस का। तो एनवायरमेंटल बेसिस जो है बेसिकली एक तरीके से एक्सप्रेशन होता है जीन्स ऑफ इंडिविजुअल। लाइक आपके पास जीन्स है अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली के, आपके जो भी खानदान है उसका, तो आपको अंदर जीन्स है, आपकी बायोलॉजिकल साइड आपको इन्फ्लुएंस करती है। पर वो जीन्स आपकी लाइक आपके जीन्स के अंदर कैसी पर्सनालिटी ट्रेट है, ये चीज एक्सप्रेस होती है आपके बिहेवियर से। और आप अपना बिहेवियर कहाँ दिखाते हैं? अपनी फैमिली के बीच में अपना बिहेवियर दिखाते हैं, सिचुएशन में दिखाते हैं। लाइक एनवायरमेंटल जो साइड है
वो हेल्प करती है आपकी बायोलॉजिकल साइड को एक्सप्रेस करने में, बाहर निकालने में, ऑब्जर्वेबल बनाने में, ठीक है। आपके बिहेवियर तक का जो रूप देती है आपकी बायोलॉजिकल साइड को, वो आपका एनवायरमेंट देता है, राइट। सो ये था कि कैसे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन एक पर्सन की पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है, और बायोलॉजिकल बेसिस पे आप क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, और एनवायरमेंट कैसे एक्सप्रेशन देता है, लाइक इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म for your genetic side to be expressed in terms of behavior, in terms of your physical or outer appearances to the people. Okay, it gives you a place, it gives you like genetic side boundary बना देती है, ठीक है। जेनेटिक साइड बाउंड्री बना देती है, और एनवायरमेंटल साइड आपको उस बाउंड्री के अंदर और कभी कभी उसके बाहर तक का ग्रो करने के लिए मौका देते हैं। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी के अंदर, और खासकर पर्सनालिटी के अंदर दोनों का ही रोल इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज, yeah, this is the last topic for today's session, and this is like aspects of personality, कि पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स क्या क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। ये इग्नू मटेरियल का है कंटेंट, इसके अंदर जो आएगा, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा खास मतलब ऐसा, क्योंकि अब तक सब कुछ कवर हो ही चुका है, जो भी इसके अंदर पढ़ाएंगे वो दोबारा से मतलब रिपीट ही होना है। तो ये इग्नू का है, तो अब तक ये सब कुछ आ चुका है। आपको बस एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो 4 दिशाओं में फैलते हैं, जो आप मेजरली कंसीडर करेंगे। एक तो फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। सो हमारी पर्सनालिटी के 4 एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, पहलू देखने को मिलेंगे, फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। अब आपको पता है फिजिकल कैसे है, आउटर अपीयरेंस। बायोलॉजिकल आपको पता है जीन्स की वजह से है। साइको ठीक है, फिजिकल के अंदर आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। साइकोलॉजिकल के अंदर आपको पता है नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है। सोशल के अंदर आपको पता है आपका कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के। जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको फिजिकल अपीयरेंस देते हैं, आपकी जो बाहर की जो सुंदरता है, आपकी शक्ल है, नक्स है, ठीक है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बाल हैं, सब कुछ आपको मतलब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट देता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और हॉर्मोन्स जो है, जो आपकी हार्मोनल फंक्शनिंग है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। तो ये भी हमें बायोलॉजिकल सेंस में मिलता है। आपका टेम्परामेंट जो है, कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ योर जीन्स, ये भी आपको बायोलॉजिकल सेंस में मिलता है। जो ये हो गया बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कैसे आपका इंपॉर्टेंस आपको देता है। फिर बात आती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में, कि कंसिस्टेंसी इन दीज मेक्स इट कंसीडर एज पर्सनालिटी ट्रेट। कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जब आप कंसिस्टेंसी ले आएंगे, स्टेबिलिटी ले आएंगे, तो वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट तैयार करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपके इंटरेस्ट आ जाएगा, कि आप ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका इंटरेस्ट है किसमें, आपका लाइक मन किसमें बैठता है, वैसे भी आपकी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। इसलिए आपको को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, आप स्पोर्ट्स में जाते हो, आपका वहाँ पे इंटरेस्ट बैठ जाता है, और आपका वो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं, या फिर आपकी जो एक्टिविटीज है, लाइक आपको क्राफ्ट करना पसंद है, आपको गेमिंग पसंद है, आपकी आर्ट अच्छी है, आपको डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो ये आपका जो इंटरेस्ट है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। फिर एबिलिटीज मतलब आपकी क्षमताएं, वो आपकी साइकोलॉजिकल पार्ट है, वो भी आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। सोशबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सोशबिलिटी आपके सोशल एस्पेक्ट में भी आ सकता है, कि आप कितने सोशल हो, आप कितनी अच्छी तरह इंटरेक्ट कर पाते हो दूसरे लोगों से, वो भी आपकी जो है पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर बात आती है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की, आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हो, या फिर आप स्ट्रांग हो बाय इमोशंस। तो ये सब कुछ भी अपनी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। टिपिकल बिहेवियर रिस्पॉन्स, जो आपका लाइक टिपिकल बिहेवियर है जो आपके अंदर है, कि आप ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में ऐसे बिहेव करोगे तो करोगे, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है पर्सनालिटी को शेप करता है। So this was all for today. I think this must be the last slide. Yes. So I hope मैंने बहुत ही अच्छी तरह हर एक डायमेंशन में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। और अब तो लाइक अगर आपको समझ में आया है, सब कुछ अच्छी तरह हुआ है, यू नीड टू लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, यू नीड टू लाइक सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू वर्क मोर हार्डर, एंड नीड टू शेयर द कंटेंट, जिससे कि आपकी तरह जो बाकी नीडी लोग हैं उन तक भी कंटेंट पहुंचे। ओके,
So thank you guys for staying and supporting me to this much extent. And I would love if you would be like subscribing, liking, and sharing the content at your end. And I would be working at my end, providing you the best thing. And that's all for today. And let's end the session over here. You can click over here for like more content. And thanks a lot, guys. Stay focused, stay healthy, and best of luck. Bye bye.